हम बात कर रहे थे टेबल कांस्टेंट की, राइट? So you have seen there are two kinds of constant. One is we can apply the constant on column level. Also we can apply on the table level. तो कॉलम लेवल पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हम जब कॉलम की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ में हम टेबल उसके साथ में हम कांस्टेंट भी अप्लाई करते हैं. So you have seen there are different kind of constant. We have seen one of the constant we know about. कौन कौन से कांस्टेंट थे? एक था नॉट नल, ठीक है. Then you have seen the unique, ठीक है. Then you have seen the yeah. हाँ, क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, बता रहे थे क्या चाहिए कांस्टेंट. अच्छा, यूनिक, प्राइमरी की, ठीक है. Then we have a foreign key, okay, foreign key constant, that is also called the referential key constant. Then we have a default constant, right? So all these constant can even be have a check constant, right? These constant can also be applied at the table level, right? तो हम इन constant को table level पे भी apply कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें नॉट नल तो क्योंकि केवल हम एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, सो वी कैन डू दिस ऑन दैट, राइट. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट इन दैट? if we write any, so we have to write a create table, right, and give the table name, right, and here we have to write the statement, right, a statement about the attribute. So attribute 1, okay, their data type, okay, then we have to write the size, and after that we have to write the column constant, right. So here we have to define the column constant at any case, right. It's a optional, right. So all this in that. So we have column 1, then we have to write column 2, then we have to write column 3, right. There are number of constant you can apply, right. So these are A1 attribute, A2 attribute, A3 attribute, right, so on. And after defining all the column, if you are defining any constant, right, and this kind of constant is called the table level constant. It's not defining at the column. Column जब आप define करते हैं उसको constant कहते हैं, तो ये हमारा कहलाता है column constant. जब आप table के ऊपर ये table जब create कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप बाद में define कर रहे हैं, तो constant 1, constant 2, whatever the constant is there, so you can apply the constant here, and so many constant you can apply. So these constant are defined at the table level. तो यहाँ पे ये वाले जो कांस्टेंट हैं वो क्या कहलाएंगे? टेबल कांस्टेंट, ठीक है. So here you can define the table level constant. So how we can define? Let it be defined in that. See, I have already created some of the table, right. ये हमने आपको टेबल क्रिएट करके दिखाई थी कि एम्प्लॉय की, डिपार्टमेंट लोकेशंस की. आप लोगों से पूछा भी था कल, राइट. तो ये जो हमने टेबल बनाई थी, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट नेम, मिनट, लास्ट नेम, एसएसएन. तो एसएसएन यहाँ पे हमने प्राइमरी की यहाँ पर डिफाइन की है. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट हमने अप्लाई किया है ये कॉलम लेवल पे हमने अप्लाई किया है, ठीक है. यहाँ पे देखो सुपर एसएसएन के बीच में, यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया है ये फॉरेन की कांस्टेंट बनाया है, ठीक है. ये किस लेवल पे डिफाइन किया? कॉलम लेवल पे. बट यहाँ पे अगर देखें इस डिपार्टमेंट लोकेशंस के केस में, यहाँ पे कांस्टेंट हम बाद में अप्लाई कर रहे हैं. ये डिपार्टमेंट नंबर और ये दोनों ही एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है. ये दो एट्रीब्यूट थे, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट लोकेशन. आफ्टर दैट हमने कांस्टेंट अप्लाई किया, तो ये जो कांस्टेंट है वो कौन सा है? टेबल कांस्टेंट है. कैसे कांस्टेंट है? टेबल कांस्टेंट है, राइट. तो दीज कांस्टेंट जो हम आफ्टर कॉलम डेफिनेशन अगर हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो वो पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होते हैं. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दीज आर द टेबल कांस्टेंट.
again we can apply here primary, a unique constant, then check constant, then primary key, foreign key, right, default. So all these constants can be applied at the table level, right? तो ये है। तो आपने एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, see what kind of constant of the employee table. See, यहाँ पर SSN हमारा प्राइमरी की है, ठीक है, नॉट नल है। अगर अब हम यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें, फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए कि फर्स्ट नेम में कोई आप वैलिड यूनिक करना चाहते हैं या कोई आप डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो अब अगर ऑलरेडी आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और इस केस के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको कहते हैं ऑल्टर। ऑल्टर के बारे में हमने कल बताया था। नो सर। चलिए, ये क्या नाम है, इसने टेबल कांस्टेंट पूछा था, प्रतीक। यस सर। ठीक, अब क्लियर हो रहा है कि कैसे टेबल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। यस सर। सर एक एग्जांपल आप एसक्यूएल पे करा के कमांड लाइन पे एक बनाया हुआ है, एक में एक एग्जांपल लेके और बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। एक हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, और नेम दे रहे हैं इसको कोई भी नाम दे देते हैं, चलो प्रतीक टेबल दे देते हैं। प्रतीक की टेबल में हमारे पास कुछ फील्ड हैं, लेट दैट इज एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, कोई भी हम बात करते हैं। और हेलो मैम, समय में क्लास में हूँ, थोड़ी देर में आपका गुड आफ्टरनून। And see, employee ID is there, employee name is varchar2। मैं कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, let it is 10। then see, age is there, age is integer, ठीक है। चलिए, इतने ही बहुत है हमारे पास, ठीक है, और हमने इसको दिया, टेबल इज क्रिएटेड, राइट। अब हम इसमें वैल्यू इंटर करा देते हैं, एक दो वैल्यू इंटर करा दें। हेलो जी, हाँ, नहीं भैया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज प्रतीक, ठीक है। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज हमने एक डाल दी, अभी हम कुछ भी डाल सकते हैं, 11, ठीक है। नेम इज ई नेम इज राइट, सपोज कुमार, ठीक है, चलो कोई नहीं कुमार। देन एज इज 22 फॉर एग्जांपल, सो इट विल बी इंसर्टेड नाउ। अब आप कहना चाह रहे हैं कि हम इसमें कुछ देखिए, यहाँ पे तो हमने बिना उसके किसी भी कांस्टेंट के हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसी टेबल को फिर से चेंज कर रहे हैं, न्यू टेबल, न्यू टेबल बना रहे हैं, और हमने फिर से चेंज किया, और हमने इसमें क्या क्या डाला, वेरिएबल नेम डाल दिए, ई नेम, और फिर हमने इसमें एज भी डाल दी, ठीक है। ठीक है। अब हम एज इंटीजर हो गई, सॉरी। अब बात आती है कि अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करना है टेबल के ऊपर, जिसमें हमने कहा कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट हमने नाम दिया, ठीक है, कांस्टेंट टेबल लेवल कांस्टेंट बना रहे हैं कि ई आई डी इज योर प्राइमरी की। तो हमने पी के प्राइमरी की का एक नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया पी के, एंड वी हैव टू डिफाइन इज ए प्राइमरी की,
प्राइमरी की है। प्राइमरी की कौन सी है? दैट इज EID। प्राइमरी की इज EID, राइट? सो दैट इज फर्स्ट। चलिए एक और कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। चलिए कांस्टेंट बना रहे हैं यूनिक कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट नाम दिया UQ, राइट? और इस UQ हमने ऑलरेडी किसी का दे रखा है तो UQ1 ले लिया, ठीक है? तो यूनिक कांस्टेंट बना रहे थे। यूनिक कांस्टेंट किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? ई नेम के ऊपर, ठीक है? ई नेम दे दिया, राइट? सी है, all constants are applied and see table is created. So see सर here, फिफ्थ लाइन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, डिले हो रहा है सर। डिले हो रहा है। यस सर। चलो सर अब फिफ्थ आप यहाँ लाइन पे को देखिए, फिफ्थ लाइन पे देखिए कांस्टेंट लिखा में इसके लिए हमने उसका नाम दिया पीके और गिव वॉट एवर द कांस्टेंट यू वांट टू से। द सिंटेक्स समझ लीजिए, सिंटेक्स में क्या है? कांस्टेंट, गिव द नेम ऑफ द कांस्टेंट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, देन कांस्टेंट अप्लाई करिए और किस कॉलम के लिए वो कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है तो वो आपने उसका कॉलम लिख दे दिया, ठीक है? तो प्राइमरी की EID, राइट? सो हियर your EID is now become a primary key. Similarly एक और हमने कांस्टेंट बनाया जो हमने ename के ऊपर अप्लाई करना था, तो कांस्टेंट UK1 unique ename, right? So these two constant are applied and then when we insert, when we run this query, this is table is created. अगर आप देखना चाहो टेबल बन गई है, ठीक है? तो टेबल को आप देख सकते हैं, ठीक है? देयर आर 3 एंट्री। देखिए पहले के केस में यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था, जब हमने इसको अलग से लिखा तो नॉट नल आ गया, तो EID इज योर प्राइमरी की। क्लियर हो गई? अब आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं वैल्यू, इंसर्ट इनटू प्रतीक न्यू and give the values and whatever the value you want, Priya 11, then write Ram, then suppose A is 18, ठीक है? 17 फाइन, ओके फाइन। चलो ये तो हो गया कि कैसे हम वैल्यू, कैसे हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट जब कॉलम लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं तब हम अलग से कर सकते हैं, कांस्टेंट जब हम बाद में भी कर रहे हैं तो वो टेबल कांस्टेंट कहलाते हैं। कोई अंतर नहीं, कांस्टेंट वही है, ठीक है? बस चेक कांस्टेंट के साथ प्रॉब्लम रहती है, चेक कांस्टेंट टेबल कांस्टेंट में कभी कभी नहीं काम करता है, ठीक है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ही अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है? उसमें एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए ये होता है। Sonam, are you there? ठीक है, चलिए बात करते हैं। Now we are moving towards the alter. Alter, how alter is designed in that? Alter कमांड हमारी किस तरह से काम करती है उसके बारे में पढ़ते हैं आज। Before alter, you have to know about the drop, right? ड्रॉप के बारे में मैं बता दूं कि ड्रॉप जो स्टेटमेंट होती है, जब आपने कोई टेबल क्रिएट कर लिया या कोई भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अगर उस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को आप उस सिस्टम से डिलीट करना चाहते हैं, drop is also a DDL statement. DDL means data definition language statement. In that case, whenever you do anything over the structure of the database, then what kind of instructions or statement that comes
that modify, that can create, that can apply some constant over the structure, then all those statement comes under the DDL. So drop is also a DDL statement that is used for deleting the table. For deleting the table, that means you have to delete not only all the records, but also the structure of the table from the database, right? So in that case, if we say about how to drop a table, like for example, we want to drop Pratik table, right? तो हम क्या लिखेंगे? Drop. सर ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों सेम होते हैं? क्या? ड्रॉप और ट्रंकेट नहीं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। ड्रॉप एंड ट्रंकेट दोनों ही अलग होते हैं, और दोनों की ही अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि कैसे अलग होते हैं ड्रॉप में और ट्रंकेट में। देखिए, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम दीजिए ड्रॉप टेबल, एंड टेबल नेम इज, सपोज हमने एक टेबल जो बनाई थी अभी प्रतीक नाम से, तो उसको ड्रॉप करना चाहें। सो सी हियर यू हैव टू ड्रॉप दिस टेबल। अगर हम देखो फिर से एक बार देखो, प्रतीक न्यू टेबल बनाई हुई है, उसको ड्रॉप करना चाहें, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव a structure, so if we delete this table, so we have to drop table प्रतीक न्यू। अगर अब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहो कि क्या ये एग्जिस्ट करती है, तो देखिए प्रतीक न्यू के नाम से मैंने फिर से सर्च किया, ऑब्जेक्ट प्रतीक न्यू डजंट एग्जिस्ट। सो ड्रॉप statement used for deleting an database object. So deleting any object, like if we want to delete any table, so we write drop table. So here we have to give the what object do you want to delete. So drop table and give the name of the table, right? Now, next kind of statement that is called alter. So alter statement is used for modifying the structure of the database. So it means altering or modifying the structure of database object. We have to use the alter. So this can be used in three ways. One is add, another is we have to use with drop, and another we can use with the modify, right? So three ways we can use this alter statement. One is add, right? Another is we say about a drop, another we say about three, that is modify. So how we can do with the add? So here we have to write the syntax, and syntax is alter, and which object you want to alter? We want to alter a table, so we have to write table, then give the table name. That means we have to provide the table name. And after that, what do you want to do? Here you want to add any column. So here you have to give the column list. Column 1 data type and their size, right? You can add more column and their data type. So you can column 1 data type, column 2 data type, column 3 data type, and so many things in that, right? So if we do this, we can add any column in the data type, right? ये बात clear हो रही? What is the syntax for the altering, adding a column into the data type? That is alter table, table name, add column, column data type, right? Right? So see here. एग्जाम्पल देखिए, अगर हम देखते हैं क्या कोई हमारे पास टेबल है ऑलरेडी, चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय 1 नहीं एग्जिस्ट करती है, ये सी एम्प्लॉय 2 देखते हैं, ये भी नहीं एग्जिस्ट करती है, सॉरी एम्प्लॉय 2, फाइन। Yeah, see here we have already a table that is employee 3 that contains some attribute, right? And you want to now add in this table birth date as an attribute, right? एक आप इस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, और तो हम क्या लिखेंगे? we have to write क्या? we have to write alter। दिख रहा है सभी को? सर डिले हो रहा है सर, Yes, sir. टाइम लग रहा डिले हो रहा है? डिले का तो मैं Yes, कुछ sir. कर नहीं 10 सकता। से ऑलरेडी 20 जो हमारी डाटा ट्रांसफर रेट रहेगा, ठीक है, नेटवर्क पे उसी हिसाब से चलेगा।
ऑल्टर टेबल, देखिए अब ऑल्टर टेबल, चलो मैं 2-2 मिनट का 20-20 सेकेंड का वेट कर लेता हूँ। आरसी अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। Alter table and gives the table name. Table name is EMP3, right? So alter table EMP3. इस टेबल को हमें ऑल्टर करना है EMP3. नाउ क्या हमें करना है इसमें, हमें एक इसमें कॉलम को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, यूज कीवर्ड ऐड। ऐड कीवर्ड को यूज किया, अब क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है, किसके नाम का, वर्ड डेट। तो व्हाट्स द डेट हमने इसमें एक एट्रीब्यूट लिया। अब एट्रीब्यूट जब लिया है तो उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। लेट वर्स्ट डेट इज ए डेटा टाइप। So see here, your table is now become altered, right? So check the description of this table. Here description is already designed here, and name is now one of the attribute, that is what date is there, right? And now you can add this thing. So if we see what are the values in this table, so select star from EMP3, right? See, already we have two values, right? Like 15 Rajesh, 19 Delhi, and so on. 15 Kamlesh, 19 Delhi, or same value, only name is changed, right? See, already birthday is added later on after adding these two entries. That's why the value for the birth date for these two entries become null. यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, null. अब अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट इनटू, नाउ यू हैव ऑलरेडी मॉडिफाई योर स्ट्रक्चर, so you have to provide the into EMP3 values, right? All values, like suppose it 9, 12, then ename is Kumar, ठीक है, then age is 20, then address is Noda, ठीक है, then suppose salary is 248, ठीक है। अब हमें बर्थ डेट डालनी है। बर्थ डेट का फॉर्मेट क्या होता है, सभी को पता है ना? सपोज 12 जैन, ठीक है, इधर आप 4 डिजिट में 1980 डालो या ओनली 80 डाल दो, ठीक है। सो इन दैट केस सी quoted is not properly terminated, fine. Now one row is created. अब हम अगर इसकी वैल्यू चेक करना चाहें, देखिए अब यहाँ पर हमने जो एंट्री डाली हुई है वो हमारे यहाँ पे मेंशन हो रही है विद देयर बर्थ डेट, ठीक है। अगर हम पुरानी ही एंट्री डालेंगे तो नहीं जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? आप पर्टिकुलर वैल्यू की एंट्री डाल सकते हैं, एक केवल हमें ये आईडी डालना है, बाकी क्योंकि इस टेबल पे आई थिंक कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, या एम्प्लॉय 3 पे ऑलरेडी एक कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है जैकी EID, ठीक है। तो हम कोई भी अब वैल्यू इसमें डाल सकते हैं ना। सेम केस अगर हम इस बर्थ डेट को ड्रॉ करना चाहें, इस बर्थ डेट के कॉलम को ड्रॉप करना चाहें, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स में क्या लिखेंगे कि ऑल्टर टेबल, टेबल को ऑल्टर करना है, किस टेबल को ऑल्टर करना है, EMP3 को ऑल्टर करना था, ठीक है। ऑल्टर में हमें करना क्या था, हमें ड्रॉप करना था। ड्रॉप में क्या काम करना है, ड्रॉप में कॉलम को ड्रॉप करना था। सो कॉलम इज देयर, किस कॉलम को ड्रॉप करना है, बर्थ डेट कॉलम को हमें ड्रॉप करना है। सो दैट इज he alter table name, drop column and give the column name. Now see here, your table now altered, that means you are dropping or deleting the column. So see here, what is the case of in that, so select star from employee. See here, जो हमारा कॉलम था बर्थ डेट वो हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया, कॉलम जो हमारा बर्थ डेट था वो डिलीट हो गया। आपको सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं? क्लियर हो रही, कैसे हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं किसी नए कॉलम को, और कैसे हम किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द ऑल्टर कमांड। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। चलिए अब हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है किसी भी डेटा जो कॉलम की एट्रीब्यूट है उसके साइज को आपको चेंज करना हो तो हम ऑल्टर कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। या हम कोई कांस्टेंट अप्लाई करना चाहें तो और कर सकते हैं, या हम किसी कांस्टेंट को डिलीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, राइट। तो चेक करते हैं, हम इसमें एक कांस्टेंट मॉडिफाई करना चाहते हैं। अभी जब हमने चेक किया था कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट, सो हियर EID इज 38, इंटीजर टाइप था, varchar 20 था, नंबर 38 था, varchar 10 था, एड्रेस और नंबर सैलरी नंबर की थी। चलिए अब हम एड्रेस के साइज को जहां 10 कैरेक्टर ही ले रहा है, क्योंकि 10 इज वेरी मिनिमम फॉर एनी इन दैट केस, एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम इसके साइज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, साइज 10 से 20 करना चाहते हैं, ठीक है, मॉडिफाइंग। तो हम मॉडिफाई किसके स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, तो हम फिर से वही चीज करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। अब की बार हम ड्रॉप या ऐड की जगह कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, मॉडिफाई हम कॉलम को कर रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, किस कॉलम को कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं एड्रेस, ठीक है। अब इस एड्रेस का डेटा टाइप क्या है, varchar 2 था जो कि 10 का था, अब हमने ले लिया 20 का, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दैट, मॉडिफाई कर रहे थे किस कॉलम को, एड्रेस कॉलम को, ठीक है। तो एड्रेस कॉलम को हमने मॉडिफाई किया, ठीक है, और उसका साइज दे दिया varchar 20, राइट। सो सी हियर वी सी द डिस्क्रिप्शन जो हमारा 10 था, अब की बार यहाँ पे एड्रेस का साइज 20 हो गया। सो यू कैन यूज द मॉडिफाई बाई जस्ट गिविंग द पर्टिकुलर साइज ऑफ द डेटा टाइप, राइट। ये था हमारे 3 चीजें हो गई, ऐड हो गया, ड्रॉप हो गया, मॉडिफाई हो गया, राइट। तो ऐड ड्रॉप के केस में आपको बताया ही था, क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल gives a table name, then you have to write drop, and drop क्या करना है, कॉलम करना है, तो COLOM कॉलम, ठीक है, किस कॉलम, एंड गिव द कॉलम नेम, ठीक है। ये था हमारा ड्रॉप के केस के लिए। नाउ सेकेंड क्या था, मॉडिफाई करना है, कि साइज को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो साइज इज कैन बी मॉडिफाई यूजिंग दिस कमांड, सो हियर टेबल एंड राइट द मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई वॉट एवर द कॉलम एंड न्यू वेरिएबल साइज, न्यू वेरिएबल साइज। अभी हम इसमें रीनेमिंग भी करके बताएंगे कैसे है वो, ये थ्रू द ऑल्टर टेबल वेरिएबल on that we can modify your column, ठीक है। now we can also do this modifying the constants, constant अब हमें modify है, you can use do the modifying constant or adding or deleting the constants in the table using alter. How we can add or delete constant using the alter statement, right? So in that case, so what we will do here, so again alter statement is used, and अभी तक हमने देखा कि not null unique हमें पता नहीं unique है या नहीं है इसमें, right? If you want to check unique is there or not, so you have to insert values into employee 3, and what is this, so here salary is not there, fine, and we want to enter this value, check करके देखते हैं कि क्या है। So unique constant already applied in the Kumar, right? Unique constant is already applied in the Kumar. So अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं ठीक है, चलिए कोई नाम ले लेते हैं, and now want to enter, now your row is created, right? That means already there is no constant over the PK, right? Here not null is there, right? Here only not null is there, right? But is not a primary key,
It's not a primary key, right? So that's why it will taken all the entries like that, right? So we want to convert this not null value, right? See here. So alter table emp3 modify, and now modify, and what is the value of EID? EID is there. Modify EID and see here. Table is altered. Means अब अगर हमें डिस्क्रिप्शन देखें, EID is primary key. See here. System cannot validate प्राइमरी की. ये प्राइमरी की क्यों नहीं ले रहा है? कोई बता सकता है कि इसने प्राइमरी की वैल्यू को वायलेट कर दिया है? ऐसा क्यों हुआ है? Here the values of the table. तो ये बताएगा कि इसने इस प्राइमरी की को वायलेट क्यों किया है. हम इसको ऑल्टर करना चाह रहे थे, बट EID नॉट ए प्राइमरी की. इससे नॉट ए प्राइमरी की क्यों नहीं बन सकता? कोई बताए कि प्राइमरी की नहीं बन पाई है. यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की कि ऐड EID इज ए प्राइमरी की, मॉडिफाई EID एज ए प्राइमरी की. डुप्लीकेट वैल्यू है सर EID में. हाँ, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है. अगर हम इस वैल्यू को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रंकेट. ठीक है, ट्रंकेट. ठीक है, table and gives the emp3. Table is truncated means all the values of this no row. देखिए अब यहाँ पर no row recorded है. ट्रंकेट यहाँ पे समझ लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ. ट्रंकेट स्टेटमेंट delete all the records of the table. All the records means whatever the value we have entered into the system, these all value are deleted from the table. जबकि अगर ड्रॉप कर रहे थे तो क्या इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो रहा था. ये क्लियर, ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है. इवन एग्जाम में भी बहुत आता है. ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है? ट्रंकेट क्या करता है? केवल ट्रंकेट इज ए DDL स्टेटमेंट दैट विल डिलीट ओनली द records of the table. Records means tuples, right? All records, not a single record, or whatever the record it contains, all records are deleted from the table. It doesn't delete the structure of the table. So structure is still present, right? If you want to see the structure, so DSC EMP3 हमने अगर करना चाहें, ठीक है, तो देखिए again, see this is there, right? So now we have to put here modify. Altering command हम यूज करना चाह रहे थे कि alter table emp3 modify EID primary key. So now अभी ये यहाँ पर हमारा ये alter की में जब हम modify कर रहे थे, alter table emp3 modify EID primary key, ठीक है, प्राइमरी की बना रहे थे EID को, तो ये modify नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे. Right now here we have altered it using same syntax again. Alter table emp3 modify EID primary key. So primary key is created for the EID, right? समझ में आ रही है बात कि how we can alter any, or we have to add the constant in that, right? Similarly, you can say here we have to modify, and we just want to modify emp3 add, and want to add what? We want to add constant, and
constant is here we have to say about ch, and we have to write check. Age must be greater than 80. चेक के साथ आंसर करो। सर कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत है। कहाँ पर भी हाँ कांस्टेंट गलत आ रही है, क्या हो रहा है? चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, वैसे चेक के साथ करता हूँ। Table, alter table, table emp3 add constraint default. Constant. मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे हम अगर हम कोई कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, कैसे कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो उसका सिंपल फॉर्मेट है कि ऑल्टर टेबल एंड गिव द टेबल नेम add whenever we want to add any constant, so we have to use add and give the constant name with their constant and किस कॉलम के ऊपर आप कांस्टेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड दैट. So here when we do this, so table is altered, and we if you want to drop the constant, you have to write alter table imply drop, and whatever the constant you want to delete, so drop constant pk1. So pk1 is the name of that constant, it is deleted in that, right? So check here, if you want to we have a
डिपार्टमेंट टेबल और नॉट, चेक कर लेते हैं एक हम कि कांस्टेंट डिपार्टमेंट टेबल है कि इसमें। Yes, department table is there that contain DID as a this. So first of all, we have to add one thing in that employee table 3, and here to add क्या करना है, column that is department number, ठीक है, and here we have to apply this department table refer to references and किसको refer कर रही है, references department see here, alter table employee at D number some values, right? And now we have to just add a department number that will be referred to any DID, right? Department of DID, department of the department के DID को refer कर रहे हैं, references department of DID, right? So that is, so you can use the alter command for adding any constant, dropping any constant, modifying or modifying the structure of the data type, data table, or add any column or drop any column, right? So adding, dropping, modifying can be done using the alter statement, right? Now, when we talk about the all this, so this is all there in that. Now, truncate is already discussed. Truncate table is that is used for deleting the records of the table, right? Now, next command, that is a DDL statement, that is called rename. Rename statement is basically used for renaming a table name or relation name. It not only used for renaming the structure name or relation name, it also used for renaming the attribute name. So how we can do? So again, renaming means modifying. Again, हम कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा ऑल्टर, ठीक है। तो ऑल्टर के केस के लिए फिर से हमें अगर हम कहें कि हम इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करना है, तो यू हैव टू राइट ऑल्टर टेबल, टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट, ठीक नहीं है इसका, इसको हमें रीनेम करना है, तो वी हैव टू रीनेम एंड रीनेम टू किस नए नाम दे देते हैं, तो हमने डिपार्टमेंट 1 के नाम से इसका नाम दे दिया, राइट। सो सी हियर, क्या हमने इसको ड्रॉप कर रखा था, नहीं सॉरी, डिपार्टमेंट। Now your table name is altered and new name is now become department 1. So if you want to see here DEPT MET, चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट करी, ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट डजंट एग्जिस्ट। बट अगर हम यहाँ पे इसको फिर से देखें, डिपार्टमेंट 1 के नाम से, ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट फिर से वही जो एंट्रीज थी, DD एंड डी नेम, डी लोकेशन, MGRSS, ठीक है। सो हियर DD, डी नेम, डी लोकेशन, MGRSS ऑल इज देयर, राइट। सो विद द न्यू नेम, राइट। अब अगर हमें इसके नाम को चेंज करना हो, ठीक है, इसके किसी पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना है, DDID डिपार्टमेंट नंबर, तो रीनेम, अब की बार रीनेम किसको करना है, कॉलम नेम, COL कॉलम, और कॉलम कौन से कॉलम,
DID, DID को किस में चेंज करना है? टू DID नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, सो DE नंबर, right? So see the syntax: alter table, department, rename column, rename a column, DID to department number, right? So see here क्या हो रहा है, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई आपकी बात, फिर से डिपार्टमेंट 1 रह गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट 1, नाउ टेबल इज ऑल्टर्ड। ध्यान दीजिएगा सिंटेक्स में लिखते टाइम में गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट DEPARTMENT 1, सो डिपार्टमेंट 1, क्योंकि अब इस नया टेबल का नाम क्या है? डिपार्टमेंट 1, सो वी हैव टू चेक हियर डिपार्टमेंट 1 के किस कॉलम को चेंज करना है? DID टू D नंबर, सो यू कैन change any column at any time, right? So why renaming? But renaming here, whatever we are doing, here we are doing renaming using the rename instructor. So this is a DDL statement. So this is whenever we rename any table or any column, it is permanently changed in the structure. But sometimes we can also do a renaming, like for example, suppose we have any, just an example, select from input. We have a table of employee that contains some values, right? यहाँ पे हम एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, ABG। ABG आपको ऑलरेडी पता है क्या करता है? एवरेज। लेकिन एवरेज किसका निकाल रहे हैं? हम सैलरी का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, सैलरी एवरेज फ्रॉम किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। तो हमने अगर ये निकाला तो देखिए क्या होता है, देखिए हमने इसको किया तो क्या आएगा? तो सी हियर whatever the average salary is there, right? So there whatever the, see what we want to select, we want to select average salary. So average salary, तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में जितने भी रिकॉर्ड हैं, तो जिनकी जो जो सैलरी होगी, ये इन सभी का एवरेज निकाल के उसने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस एट्रीब्यूट को हम रीनेम करना चाहते हैं, इस एट्रीब्यूट को रीनेमिंग करना चाहते हैं, बट इट इज ए काइंड ऑफ ए एलियासिंग। सो रीनेमिंग इन दैट सेंस वी हैव टू राइट अगेन। सो हियर वी कैन यूज वन ऑफ द कीवर्ड दैट इज एज एवरेज, पूरा लिख रहे हैं एवरेज, कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? नाउ एवरेज एंड वी आल्सो एवरेज सैलरी, ठीक है। देन व्हाट विल हैपनिंग इन दैट, सी सॉरी, ये यहाँ पे डेटा टाइप जब भी आपको आइडेंटिफायर लेना है अंडरस्कोर लगा लीजिए, ठीक है। नाउ सी जो हमारे पास एवरेज सैलरी के नाम से एट्रीब्यूट यहाँ पे एवरेज सैलरी कंप्यूट कर रहे थे, उसको हमने यहाँ पे नया नाम दे दिया एवरेज सैलरी। सो दिस इज अ टेम्पररी चेंज इन द डेटाबेस, दिस इज अ काइंड ऑफ ए व्यू, वी आर क्रिएटिंग ए व्यू इन दैट। सो हियर द दिस कॉलम इज नाउ रीनेमिंग एज ए एवरेज सैलरी। बात समझ में आ रही? हाउ वी कैन डू? वी आर जस्ट यूजिंग द as is used for renaming any particular. Now again same case can be used, like for example, and now here we want to extract the information of डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम हमें निकालने थे, ऑलरेडी फर्स्ट नेम इज देयर, राइट? What we want to do, employee, see what we do, see here we are selecting E dot F, E dot F. Now see here the syntax again, employee is now renaming as a E, so here aliasing is again done over the table. So employee as E, and here we are computing E dot first name, E dot first name. So select E dot first name from employee. So see here what we said, whatever the employee first name exists in the employee table will be displayed, Ram, Mohit, so see all this. So here E is also used renaming in that. So but in that case using as or E
we are creating the aliasing, that is called renaming of any object. But it is a temporary, not a permanently. They are not changes in the data structure, right, or data definitions, right? So that's why they are not, it comes under the DDL. But you can also do using the as or just giving a new name. That, right? So even one more thing, you can use, this is a case why we are doing aliasing of the attribute, because suppose we have taken department, सर टाइम हो गया. एक चीज ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट का हमने इंफॉर्मेशन निकाली फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट का डी नेम, ठीक है. हम चेक करते हैं क्या आता है. डिपार्टमेंट employee having only 4 attribute, the 4 employee, one is Ram, Mohit, Sob and Rahul. Department contain HR, production and research, but it will provide you 12 rows. That means how these are calculated, how we can in कि किस ऑपरेशन के थ्रू ये आपको एंट्रीज मिली, क्या यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम, डी डॉट डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी. तो डिपार्टमेंट को हमने डी मान लिया, एम्प्लॉय को हमने ई मान लिया, और ई के एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम कैलकुलेट किए, डिपार्टमेंट के डी नेम कैलकुलेट. बट एज यू नो, इन द केस ऑफ वी से अबाउट what are the different kind of select star from employee. You have first name, there are 4 entries. One is Ram Kumar Sharma, Mohit S. Kushwaha, so P Singh and Rahul K. Singh. There are 4 employee in that. And अगर हम डिपार्टमेंट को देखें, डिपार्टमेंट में कितनी एंट्रीज थी, तो डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 एंट्री थी. लेकिन जब हमने इसको इस तरह से लिया, 2 टेबल एक साथ लिए और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाले, तो हमारे पास कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं, 12 रो. कितने टोटल रोज आ रहे हैं, 12. सो हाउ वी कैन गेट दीज रोज, व्हाट इज द, व्हाई वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन दैट. So what operation we have performed here? Can you tell me what kind of operation is performed in this syntax? Anyone? तो ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है. बाय डिफॉल्ट कि एम्प्लॉय को ले लिया, ई डिपार्टमेंट को ले लिया डी, एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड सम एंट्रीज, वन फ्रॉम द एम्प्लॉय, अनदर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, एंड देयर आर 12 रोज. जबकि एम्प्लॉय में केवल 4 हमारे रोज हैं और डिपार्टमेंट में 3 रोज हैं. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. बिल्कुल सही, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए परफॉर्म हो रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम सारे के सारे ऑपरेशंस, सारे के सारे जो हमारे फर्स्ट टेबल की एंट्रीज हैं, यहाँ पे देखो 2 टेबल ली हुई हैं, एक एम्प्लॉय टेबल, एक डिपार्टमेंट. जितने एंट्रीज हमारे एम्प्लॉय में थे और जितनी एंट्री हमारे यहाँ थे, उनके सभी के साथ मैच कर, हर टपल इसके हर टपल के साथ मैच कर रहा है. और ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा ऑपरेशन होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो जस्ट काइंड ऑफ सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज involved in this finding out the first name and their department. So later on we discuss what is the basic query instruction of SQL. That is basically in the case of basic structure, there are 3 clauses. Select from where. So selecting all the attribute from all the tables, whatever the table you have written here, and where P is the production, P is the predicate. Predicate means the conditional statement. So later on we discuss over how we can use this select from where and how to design this predicate or conditional statement with some operations. So next class we will discuss about the all these.